Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11 in class 12. That next chemical properties are alcohol and that is in phenol. So second is esterification. In previous class we will studying about the acidity of alcohol and the phenol. Now today we deal esterification. So esterification means formation of ester. क्या बनाना है? एस्टर्स बनाना है. So first देखते हैं एस्टर फॉर्मेशंस के लिए. So react with acetic acid. Going to say carboxylic group. So here example here आपको प्राइमरी अल्कोहल्स पढ़ने हैं. So यहाँ देख लेते हैं CH3OH react with acetic acid. So CH3 COOH. So form esters, remove OH and the H. That what will become H and the OH. That gives H2O. H2O remind क्या बचा यहाँ पे CH3 COO and CH3. That is it ester RCOOR. क्लियर. नेक्स्ट देखते हैं फिनॉल के साथ रिएक्शंस. आपको एग्जांपल लेना है प्राइमरी अल्कोहल्स. यहाँ पे OH प्लस CH3 COOH. कोई भी एस्टिक एसिड की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आप कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले सकते हैं. So again I remove OH and H. So minus H2O. What will be remain? So here benzene ring COOCH3. Benzene ring COOCH3. That is ester. Clear? Next react with acid halide. So again I give example CH3OH plus acid halide फार्मूला लिख लेते हैं. तो इसका RCOX. So X की जगह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Ca और R की जगह ले लेते हैं सपोज यहाँ पे CH3. Clear? Acid halide. So here in the presence of pyridine that remove H and remove C. What will be found? That create HCl. Remind क्या बचे यहाँ पे? Remaining देख लेते हैं CH3O and CH3. So here CH3C, वहाँ से CO, another oxygen and CH3. Similar react with phenol. That is in OH, another acid halide CH3CO. Ca we take out H and Cl in the presence of pyridine, so minus HCl. Remaining here COOCH3. CH3 CO and O, another benzene ring. That gives ester. Next react with acid and hydride. Acid and hydride. So primary alcohols we take it here CH3 and OH. Acid and hydride, that formula is RCO and O. That is formula of acid and hydride. So R के प्लेस में मैं यहाँ पे ले रहा हूँ C2H5 और यहाँ भी लिखिए सपोज यहाँ लिखिए CH3. चलिए C2H5. Clear? So here that ester formations. So यहाँ से रिमूव कर दीजिए OH और यहाँ से क्या रिमूव कर दिए C2H5CO. So chemical gas C2H5CO and OH. OH. Clear? Remaining क्या बचे C2H5. ये हो रहा है H प्लस के प्रेजेंस मतलब C2 प्रेजेंस में. So C2H5COO, C oxygen and oxygen, another CH3. That gives carboxylic group and the ester. Another here one example in phenol. That is in OH plus suppose यहाँ पे CH3 CO oxygen CH3 CO. So OH
that gives CH3COOH, and remaining group CH3CO and benzene ring. So benzene ring now there is COOCH3, that gives ester. So हम यहाँ पे एस्टर फॉर्मेशन की 3 मेथड पढ़े थे। पहला था कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे, दूसरा एसिड हैलाइड के ग्रुप के बेस पे, थर्ड इज एसिड एनहाइड्राइड। यदि इनके साथ रिएक्शंस आते हैं अल्कोहल से या फिनॉल के, तो क्या बनेगा वहां पे एस्टर का फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट इज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन विल ऑर्डर क्लियर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। इससे पहले हम लोग देख रहे थे OH बॉन्ड का ब्रेक हुआ, अब हम स्टडी करेंगे C और O बॉन्ड के ब्रेक। यहाँ पे देखिए R O एंड H, इससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, बट अब कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे देखेंगे जहाँ कार्बन R से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। क्या रिमूव होगा जल्दी? OH रिमूव, क्या रिमूव होगा? OH। सो अब इसका नेचर जो हो जाएगा वो होगा बेसिक नेचर। इससे पहले जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था उसमें एसिडिक नेचर आ जाएगा। So यहाँ फर्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। So we take a give example CH3 hydrogen O and H, CH3OH and hydrogen halide। So हम लेंगे यहाँ पे HCl, क्या लेंगे? HCl। अब यहाँ पे आपको बॉन्ड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में ब्रेक नहीं करना, दैट बॉन्ड ब्रेक बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, सो दैट इज ब्रेक हियर, सो गिव्स OH and one hydrogen. So what will be formed? That gives H2O and remains CH3 and Cl. So CH3Cl, that is the reaction. Clear? अब इसी में लुकास टेस्ट है जिसको आगे स्टडी करेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल कंडीशन। Clear? So that is the first chemical reaction, that is involving cleavage of carbon oxygen bonds. So next is dehydration, that is the most important topic of this chapter. इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सबसे फर्स्ट में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से एल्कीन टू अल्कोहल फॉर्मेशन करते हैं। अब देखेंगे अल्कोहल टू एल्कीन को हाइड्रेशन, अब देखेंगे डीहाइड्रेशन। हियर आई विल टेक वन एग्जांपल दैट CH3CHOH, so CH2OH. So dehydration, that is the presence of protein acid in H2SO4. So if we remove that one hydrogen and one OH, so that gives H2O. So what will be given? CH2 and CH2. So CH2 double bond CH2. You have to say alcohols gives alkene आफ्टर डीहाइड्रेशन। वाटर का रिमूव होना, इससे पहले वाटर के एडिशन देखे थे, वाटर जो रिमूव हो रहे हैं तो क्या बनेंगे यहाँ पे? एल्कीन्स बनेंगे। सो इसका जो सीरीज होता है वो सीरीज सबसे ज्यादा होता है सेकेंड प्राइमरी में, आफ्टर देन सेकेंडरी, आफ्टर देन टर्शियरी। ये याद रखेंगे, आपका आगे यूज होगा। ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो सबसे ज्यादा मैग्नीशियम होता है प्राइमरी में, बिकॉज यूजुअली क्या होते हैं जो सेकेंडरी में वहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स बढ़ जाते हैं। क्लियर? उस कंडीशन में यहाँ पे एसिडिक नेचर की बात करें, इसलिए अपना हाइड्रोजन रिमूव करा सकते हैं। अब देखिए इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ डीहाइड्रेशन। सो फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। सो वी टेक एथिल अल्कोहल्स हियर, सो कार्बन, हाइड्रोजन, 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 कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन and OH. Clear? So that addition of hydrogen H plus, अब H plus कहाँ से प्रोवाइड हुआ? So that gives प्रोटीन एसिड, जो H2SO4 या H3PO4 लिए तो ये क्या देते हैं? हाइड्रोजन। अब इसका कहते हैं यहाँ पे एडिशंस कराते हैं ये भी। तो इस कंडीशन में क्या होंगे? तो CH plus CHOH and H। क्या बोलिए? ऑक्सीजन इससे जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया किससे? दैट ऑक्सीजन से। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये हो गया प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स के फॉर्मेशन। क्लियर? सेकंड देखते हैं इसमें कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन।
carbocation formation. So that he gives here. चलिए इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ CH3 CH और यहाँ से रिमूव हो गया क्या लिखे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो -H2O इतना को आप बाहर निकालोगे रिमूव करा देंगे क्या बचेगा यहाँ पे CH3 CH कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन और यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव है पार्शियली पॉजिटिव सो ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो कौन सा चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सो दैट कॉल्ड कार्बोकेटायन और क्या रिमूव हो गया यहाँ से H2O रिमूव पहले हाइड्रोजन का ऐड हुआ तो H2O ऐड हो गया यहाँ पे पोटेंशियल इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रिमूवल ऑफ वाटर दैट फॉर्म कार्बोकेटायंस आफ्टर कार्बोकेटायंस that CH3 CH and plus that deprotonation means to say removal of H plus so if you remove that one hydrogen here hydrogen suppose this hydrogen is removed so CH2 and CH2 double bond CH2 so what will become that ethene is created so first hydrogen get from acid after then water remove after then hydrogen remove clear so that is the mechanism of dehydration so next is dehydrogenation means से हाइड्रोजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना हम अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन so primary alcohol oxidizing to aldehyde is turned oxidized to carboxylic acid so यहाँ पे देखिए जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं यहाँ से निकल गया H और यहाँ से निकल गया H क्या रिमूव हुआ H2 का रिमूव होने का है डिहाइड्रोजनेशन या फिर ऑक्सीडेशन अब बचे के यहाँ पे देखिए कार्बन को चाहिए 2 तो डबल बॉन्ड इस कार्बन को चाहिए 4 तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन को 2 तो CO अब यहीं पे एक एग्जांपल देखते हैं दैट अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज इनटू सपोज यहाँ पे लिखिए CH3O and H in the presence of dehydrogenation process so dehydrogenation जनरली ये होता है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड क्लियर दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स इनके प्रेजेंस में होते हैं देखिए रिएक्शंस की बात करें तो इस जगह से हम रिमूव करा देते हैं यहाँ से निकल गया H और यहाँ से निकल गया H क्या बचे यहाँ पे यहाँ देखिए H and H रिमूव सो व्हाट हियर H C H यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा डबल बॉन्ड सो दैट ग्रुप कॉल्ड एल्डिहाइड कौन सा ग्रुप है एल्डिहाइड सो अल्कोहल से क्या बन गया एल्डिहाइड यहाँ रिमूव कर दीजिए -H हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सो दैट फॉर्म एल्डिहाइड अब बोले एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ O2 सो वन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इफ यू गिव वन ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन आप हाइड्रोजन को दे दिए तो क्या बनेगा HCOH डबल बॉन्ड O तो ये कौन सा ग्रुप है दैट इज इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स सो हियर एल्डिहाइड कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक ड्यू टू ऑक्सीडेशन देखिए प्रोसेस यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिहाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है प्रोसेस तो ऑक्सीडेशन ही है और यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन है इस तरह से आप अल्कोहल से क्या बना सकते हैं एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं सो ऑक्सीडेशन सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3 that is in oxidized in the presence of chromium trioxide so to remove H and H so -H2 क्या बचेगा यहाँ पे CH3C and CH3 so CH3 double bond O so primary alcohols aldehyde देते हैं secondary alcohols क्या देते हैं that gives ketone जस्ट ऑपोजिट है इससे पहले हम लोग देखा एल्डिहाइड से क्या बनाए थे अल्कोहल्स को प्राइमरी अल्कोहल बना था कीटोन से जब बनाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बने थे फिर उसी तरह से यदि आप एल्डिहाइड प्राइमरी एल्डिहाइड को करते हैं तो उनके प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन्स फॉर्मेशन होता है
दैट इज इन टर्शियरी अल्कोहल्स। ये भी डिफरेंस में आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के, कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन होके एल्डिहाइड देते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल्स कीटोन देते हैं, बट जो टर्शियरी अल्कोहल्स है उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। ये रिमूव कराते हैं OH और यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पहले कंप्लीट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ से रिमूव होगा H, सो -H2O, डी हाइड्रोजनेशन नहीं होता इसमें, डिहाइड्रेशन होते हैं। सो इस केस में देखिए CH3 कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, और क्या हो गया CH2, सो दैट फॉर्म एल्कीन। इनमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता, क्या होता है डायरेक्ट वाटर का रिमूवल होता है। सो आप ये भी डिफरेंस लिख सकते हैं दैट टर्शियरी अल्कोहल्स डज नॉट अंडरगोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं होता। खैर अब डिफरेंस दिखाएंगे तीनों में, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। क्लियर? So we complete our topic. Now in next video we will do the reaction of phenol.